Hi everybody, we are connecting again after a week. कैसे हैं सब लोग? I see. Okay, I see almost everybody has joined in. That's fantastic, yeah. All people are just in time. Nice. So guys, throughout the week, although we are making a meeting on weekends only, but throughout the week I had sent you some codes. तो आप लोगों ने रन किए हैं वो सभी? Okay, I see most of you are responding. So again, seems like a good sign. Okay, Abhilasha, that's okay. That's something tricky with me. You will have to you will have to be on toes with me. मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट डेली ही भेजा है मेल. तो yes, you will have to look out for me. I can attack any day, anytime. Just now, again I have sent you a mail. Just have a look. It contains a data set. I promised you last weekend that next time we are going to deal with an actual data set, not like these basic data types. So far we have done just basics. We have looked at what are the data types basically on which R is built on. हमने देखा what are the data structures जिनमें डेटा आ सकता है मेरे पास. Vector, that is just a column. एक कॉलम से मेरा काम नहीं चलता, so I need some 2D structure. One 2D structure that can be matrix. मैट्रिक्स के साथ एक प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम था, कोई बताएगा जरा जल्दी से? Yes, net is glitching over here. Am I audible again? Okay, sounds good. So guys, I have sent you a mail. There is a data set there. Have you downloaded it? Just confirm me when you have downloaded it and it is ready. So a couple of things from now on. One is okay, theory. We have talked about uh, a decent amount of theory, so we will be more tilted towards hands-on. That's one. Secondly, now I will not be providing you with the codes. You will code by yourself. अगर कोड अपने आप से नहीं करोगे तो आएगा नहीं कोडिंग करना. अभी तक जस्ट हम बेसिक्स देख रहे थे, सो आई वाज सेंडिंग यू कोड एंड आई वांटेड यू टू जस्ट रन एंड रियलाइज, बट नाउ आई वांट यू टू code by yourself and then realize.
ठीक है जी, all good. Before we move on to this, meanwhile you can download this dataset. I want, is there any query, any question regarding those the codes which I sent you? उनमें से कुछ ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया? Perhaps I talked about that also. कि अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, हेल्प डॉक्यूमेंट से भी कुछ समझ नहीं आ रहा, you can just hashtag it, not hashtag it, I mean comment, just type a comment before there that this is the confusion here, and I'll take that question for you. हेलो सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, जस्ट वन क्वेश्चन. डाउट्स अभी पूछने हैं हमें या फिर बाद में पूछें? No, I would wish to start off with the doubts first. ओके, तो पूछें सर. Definitely. But just drop in that this in the chat box once you do. Abhilasha, the question table x6, what it is doing? Abhilasha, if you realize there must be a x6, x6 नाम का कोई वेक्टर बनाया होगा. I think so. Right? Maybe कुछ वैल्यूज होंगी उसकी. I don't know. Exactly मेरे को याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ऐसे करके कुछ ऐसा वेक्टर होगा. What table function does is, table function उसका फ्रीक्वेंसी बताता है कि इसमें जो एलिमेंट हैं वो कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं. लाइक 1 2 4 5 7 सभी एक एक बार आ रहे हैं. टेबल फंक्शन वही बता रहा है. It may be a factor, yes, of course it may be a factor. Factor in the sense, suppose it may be a vector of true and false. Just true, false, false, true, 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 false, false, false. Just for example, I am taking, there is a vector, I am converting it to factor, and table function does what? Table function tells me the frequency. Somebody has logged in with name Dell, please correct your name. Somebody's mic is on, please switch off your mic. As numeric और as factor क्या करते हैं वात्सल? They are just changing data types. Data type in the sense, suppose I have typed true, false, true, false, true, false. This is a vector for now, and I am converting it to as numeric. So these true, false are converted into numerics. If I type this vector x6, it is all 0 and 1 now. True, false are gone. So similarly, I can convert it to as numeric, I can convert it to as factor, as character, whatsoever, whichever data type I wish. हाँ, क्या कंफ्यूजन है इसमें? क्या बोला हमने? 1 कॉलन 5 का मतलब 1 से लेकर के 5, जिसका भी ये क्वेश्चन है. सर एक्चुअली इसका जो क्लास आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है, व्हाई नॉट न्यूमेरिक? लाइक यूजुअली तो हमारा जो भी नंबर के अच्छा. फॉर्म होता है उसको न्यूमेरिक. Okay, okay, okay. I wanted to hold it for a while, but since you asked, remember types of variables का हमने बात किया था. अगर continuous variable है, within continuous there can be two types of variables. वो क्या क्या थे? Discrete हो सकता था, जिसमें decimal part नहीं हो सकता. Audible now? Please confirm. Okay.
So whose question I was answering? Monica this side. Monica, can you correct your name there? जहाँ वो पर समीर एक्चुअली पर्सनल लैपटॉप नहीं चल रहा, मैंने ऑफिस के लैपटॉप से किया, वो मैं ठीक कर रही हूँ, तो मैं भी 5 मिनट में उसी से ज्वाइन कर लूँ। दैट्स ओके, चलो परफेक्टली फाइन। मैं आपसे बता रहा था कि इंटीजर और न्यूमेरिक, अभी इसका क्लास चेक कर रहे हो, इट इज टेलिंग यू इंटीजर, एसेंशियली इंटीजर बिकॉज व्हेन वी हैव सेड 1 colon 5, यानी मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर के 5। थिंक अबाउट इट, 1 से लेकर के 5, मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर के 5 वैल्यूज x5 में चली जाए। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर के 5 तक कितनी वैल्यूज होती हैं? 5 1 2 3 4 5। नो, आई वुड से देयर इज 1.2, देयर इज 1.5, देयर इज 1.55, देन हाउ मेनी वैल्यूज? प्रैक्टिकली इनफाइनाइट। वही बता रहा है यार आपको कि अगर इसको when we put this like this 1 colon 5, now I am essentially talking about integers, because अगर मैं डेसिमल की बात करने लगूँ, इसमें डेसिमल को इंक्लूड करूँ, तो what is the length of this? This is infinite basically, infinite एलिमेंट्स जाने चाहिए इस x5 वेरिएबल में। तो इसीलिए वो बता रहा है आपको दैट वैसे वो न्यूमेरिक ही होता, अगर आपने नंबर दिए होते तो न्यूमेरिक होता, बट सिंस यू हैव यूज्ड दिस कॉलन साइन implies that it will talk about only integers, not any middle value। जब वो सारे इंटीजर्स ही गए हैं, अब हमारे को समझ में आता है कि हाँ, अगर 1 से 5 के बीच में सिर्फ इंटीजर की बात करें तो 1 2 3 4 5 पांच ही वैल्यूज आएंगी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट होल नंबर्स, द इंटीजर्स, तो उसका क्लास भी वो इंटीजर बताता है। इवेंचुअली एंड ऑफ द डे है वो न्यूमेरिक ही, प्लस माइनस मैक्स मिन सारे ऑपरेशन काम करेंगे। इट इज जस्ट दैट behind the screen trick। I hope that settles fine। Then there is a question by Varun। Okay, you have to download that dataset that I have mailed you। ओके वरुण, यहाँ पर क्या हुआ होगा, ए नाम से आपने कोई डेटा फ्रेम बनाया होगा। ए नाम का कोई डेटा फ्रेम बनाया होगा या मैट्रिक्स बनाया होगा, एंड व्हाट यू आर टॉकिंग कि रोज कौन सी चाहिए आपको? टीएफटी, यानी पहली चाहिए, पहली में ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, वो नहीं चाहिए, तीसरी में फिर ट्रू है तो तीसरी फिर चाहिए। रिमेंबर, कंडीशन बेस्ड कर सकते थे सब सेटिंग हम। प्रैक्टिकलिटी कुछ है नहीं इसका जो लिखा है हमने ये वाला कोड, इट वाज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ट्रू फॉल्स बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं। देन वी आर सेइंग सी कंबाइंड बी एंड ए, कहाँ पर है ये? कॉमा के बाद, यानी कॉलम वाले सेक्शन में, जहाँ कॉलम बताते थे। स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे बताते थे हम डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग? रोज कॉमा कॉलम्स। तो रोज एक्सेस करने हो या कॉलम एक्सेस करना हो, सिंटेक्स ये रहेगा, रोज कॉमा कॉलम्स। नाउ इट डिपेंड्स कि रोज में हम नंबर बता सकते हैं, हाँ नंबर बता सकता हूँ मैं, कौन सी रो चाहिए, 2 5 6 10 ऐसे भी बता सकता हूँ, या मैं कंडीशन लिख सकता हूँ यहाँ पर एक कि ये कंडीशन जहाँ ट्रू हो वो रोज मिल जाए, बाकी नहीं मिले। तो वही एक तरीका लिखने का है कि ट्रू फॉल्स ट्रू, पहली चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए, तीसरी चाहिए। कॉलम में, अगेन कॉलम में भी नंबर बता सकते हैं, मैं कॉलम बता सकता हूँ 1 2 3 चाहिए, 4 5 नहीं चाहिए, फिर 6 7 चाहिए। कॉलम में हमने देखा था कि मोर प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है कि रादर देन कॉलम नंबर, मैं कब तक गिनूंगा कौन सा कॉलम चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, मैं अपना कॉलम नेम लिख देता हूँ कि मेरे को ए कॉलम चाहिए और बी कॉलम चाहिए। तो ये जो आपने बनाई होगी, जो भी बनाया होगा ये डीएफ या मैट्रिक्स, उसमें कॉलम होंगे ए बी, वही लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ। होप दैट सेटल्स। Manish is asking what is coercion? कोएर्शन इज मनीष, कोएर्शन बेसिकली, अगर आप लिटरल डेफिनेशन देखो कोएर्शन की, कोएर्शन का मतलब होता है समथिंग फोर्सफुली कन्वर्टेड। अपने कॉन्टेक्स्ट में किस चीज को हम कह रहे हैं कि इफ आई एम सेइंग समथिंग टू आर एंड आर कैन नॉट अलाउ दैट, तो बाय डिफॉल्ट कुछ तो करेगा।
वो जो भी कन्वर्जन करेगा, मैंने बोला कि जैसे फैक्टर में आपने देखा था, इफ देयर इज अ वेरिएबल a एंड इट इज एज फैक्टर, समथिंग एज फैक्टर, एज फैक्टर होने का मतलब क्या है, अब इसमें कोई नई कैटेगरी नहीं आ सकती। और मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं फिर भी जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि ए के इंडेक्स नंबर 1 पे कुछ असाइन हो जाए जो नई कैटेगरी है, एसेंशियली विच इज अ न्यू कैटेगरी से कैपिटल ए। अब ये चीज अलाउ तो नहीं कर सकता, फैक्टर डेटा टाइप अलाउ नहीं करती, लेकिन इसकी जगह पर होगा क्या, अब होना क्या चाहिए, कुछ तो डिफॉल्ट मेथड रखा होगा ना आर ने करने के लिए, एरर दे देंगे, वार्निंग दे देंगे, कुछ कर देंगे, उसी को क्वेश्चन बोल रहे हैं। वही कन्वर्जन हो जा रहा है कि जहां पर नई कैटेगरी नहीं जा सकती वहां पर एन ए जाएगा। दैट्स क्वेश्चन। Okay, then there is a question from, okay, again Monica. इसमें क्या समझ नहीं आ रहा मोनिका? तो ये तो समझ आ गई कि m के अंदर मेरी 1 to 16 वैल्यूज जाएंगी। m के अंदर हमारी वैल्यू चली गई इंटीजर्स 1 to लेकर 16। अगर मैं m2 बोलूं, प्रिंट करके देखूं, देन व्हाट इट 1 इज, to इट इज अ 16 लीनियर स्ट्रक्चर। यस, अगर मैं चेक भी करने लगूं, इसे टेस्ट करने लगूं, इज इट अ वेक्टर, आर से पूछ लेते हैं, यस इट इज अ वेक्टर। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, डायमेंशंस ऑफ m जो है वो चेंज कर दो, कितनी कर दो, 4x4। डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस। मैं कह रहा हूँ मेरे को लीनियर स्ट्रक्चर, अभी क्या डायमेंशन है इसकी, 1:16, एक ही लीनियर स्ट्रक्चर है और उसमें 16 वैल्यूज हैं एक लाइन में। अब मैं कह रहा हूँ इस डायमेंशन को चेंज करो, कीप इट 4x4। नाउ व्हेन डायमेंशन 4x4 हो गई, नाउ व्हाट इट हैज बिकम, नाउ इट इज अ 2D स्ट्रक्चर 4x4। इज इट अ वेक्टर स्टिल, लेट्स चेक, नो इट इज नॉट अ वेक्टर एनीमोर। So it is the alternative way of writing like n rows and n column. यस इट इज Like आपने जस्ट, मैट्रिक्स में जो बताया। राइट, इट इज अल्टरनेटिव वे टू क्रिएट अ मैट्रिक्स, नाउ इट इज अ मैट्रिक्स। Okay. Can we use dim and matrix interchangeably? Kind of, Abhilasha, you can change it, but see one thing, अभी अब मेरे पास क्या था, मेरे को एक वेक्टर था और उसको मेरे को एक मैट्रिक्स में डालना था, मैंने बोला 4x4। इफ यू ऑलरेडी बिफोर हैंड नो द डायमेंशंस, वेल एंड गुड, यस यू कैन चेंज, यूज देम इंटरचेंजेबली। वैसे प्रैक्टिकली तुम डील करोगे नहीं मैट्रिक्स से बहुत ज्यादा, ऑनेस्टली बताऊं, डेटा फ्रेम ही जान को आने वाले हैं तुम्हारे, टेंशन मत लो। तो फिर क्यों एक हफ्ते से जान खा रखी थी हमारी, मैट्रिक्स मैट्रिक्स, इसलिए खा रखी थी कि पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कभी। शिखर, okay, this was just for you to realize what a sample function does. क्या करता होगा सैंपल फंक्शन? मैंने बोला n की वैल्यू 10 है, यानी 10 है, यानी अब यहाँ पर सैंपल फंक्शन को मैं आर्गुमेंट में 10 लिखूं, न्यूमेरिक 10 लिखूं या n लिखूं, एक ही बात हो गई, n भी तो 10 है, इतनी बात हुई है। अब मैं कह रहा हूँ सैंपल कर दो 10 को और a में स्टोर कर दो उसको, देखो देखो a की शक्ल देखो, व्हाट हैज हैपेंड, 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यूज रैंडम ऑर्डर में आ रही हैं। सो दैट्स व्हाट सैंपल फंक्शन डज, रैंडम सैंपल कर देता है हर इंडेक्स को। जैसे पहला इंडेक्स देखना होगा तो जितनी वैल्यूज अवेलेबल है उनमें से रैंडम सैंपल लेगा, किसी को डाल देगा यहाँ पे, इंडेक्स नंबर 2 पे जाएगा, बाकी जो भी 9 बचे हैं उनमें से फिर रैंडम सैंपल लेगा, उसे यहाँ पे डाल देगा, एंड सो ऑन।
तो अच्छी बात है, हमने सैंपल ऑफ 10 किया, ए में स्टोर कर दिया, फिर से सैंपल ऑफ 10 किया, अब की बार बी में स्टोर कर दिया, और क्या देख रहे हो, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ए कुछ और है, बी कुछ और है। यानी यानी क्या समझो है इसका मतलब? Every time it will be different. यस एग्जैक्टली, इट इज हैपनिंग प्योरली रैंडम। जितनी बार इसे रन करूंगा, हर बार ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। सर बट एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जब ये सेम हो जाएंगे। जब ये सेम हो जाएंगे, हाँ मतलब जैसे अभी जो हमारा आउटपुट आ रहा है दैट इज रैंडम और वो हर बार रैंडम ही होगा। देखो बट ऐसा कोई पॉइंट आए, हाँ जी। देखो देखो, फिलहाल ए ये था, पहली बार मैंने रन किया, रैंडम सैंपल ये आया। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ ए इज सैंपल ऑफ एन, फिर से स्टोर कर दिया ए में, अब की बार ए प्रिंट करके देखूं, अब की बार ए कुछ और है, फिर देखूंगा फिर कुछ और आएगा। तुम कह रहे हो किसी पॉइंट पे सर कि ये सेम, सेम हो सर जाएगा। एक बार तो रिपीट करें। हाँ जी। अ, किस पॉइंट पे सेम हो जाएगा? कैन यू जस्ट सजेस्ट मी कि वैल्यूज 1 to 10 को कितने रैंडम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके? हाउ मेनी रैंडम कॉम्बिनेशंस आर ओके, पॉसिबल? 10 फैक्टर करना पड़ेगा, वो तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। हाँ, तो इफ़ यू आर आस्किंग मी कि तो पॉसिबल है क्या सेम हो जाए दोनों, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है सेम हो जाए दोनों। इफ़ यू आर लकी दे में कम सेम इन जस्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑल्सो। मैं 2 बार रन करूँ और दोनों बार सेम रैंडम सैंपल आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। दिस इज एब्सोल्युटली रैंडम। यस, दिस इज प्योरली रैंडम सैम्पलिंग। कैन वी ओके सर। कंट्रोल दैट? यस वी कैन कंट्रोल दैट, उसके प्रॉब्लम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। मुझे ज़रूरत क्या पड़ गई रैंडम सैंपल की? क्या करूँगा मैं इसका? ऐसा फंक्शन चाहिए क्यों जो हर बार शक्ल बदल देता है मेरे वेक्टर की? मोनिका, मोनिका यू अगेन हैव क्वेश्चन? क्या कर रही है? कोड अभी रन किया है क्या? सिर्फ यही है लास्ट ईयर। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोड भेजा तुम्हें रन करने के लिए, तुम मुझे दे रहे हो कि तुम रन कर लो, जाओ। नहीं समय कोई समझ नहीं आया लास्ट में डिम अच्छा ठीक है, यू आर ऑनेस्ट, आई विल टेक दिस वन, वन फाइनल क्वेश्चन आल्सो, ओके। What we are doing, अच्छा again it is Monica, it is again pertaining to matrix. There is a distance vector, ठीक है हो सकता है। There is a destination vector, हाँ बिल्कुल हो सकता है। There is a source vector, हाँ वो भी ठीक है। अब मेरे से बोला किसी ने कि ये डेटा मेरे को एक मैट्रिक्स बनानी है, कौन सी फ्लाइट कहाँ जा रही थी और कितना डिस्टेंस है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में वैल्यूज तो चाहिए डिस्टेंस, नंबर ऑफ रोज इज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2, बाय रो इज इक्वल टू ट्रू, डिम नेम्स यानी नेम ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज में कौन सा नाम चले जाएं, डेस्टिनेशन वाला जो वेक्टर है, कॉलम्स में कौन से नाम चले जाएं जो सोर्स वाले वेक्टर में है, एंड फाइनली मेरे को मैट्रिक्स देखने को मिल जाए। तो फाइनली मेरे को मैट्रिक्स कुछ ऐसी ऐसी देखने के लिए मिल जाती है। हाउएवर अगेन आई वुड से, ये पता होना चाहिए आपको कि मैट्रिक्स आपको सारे फैसिलिटी देता है, रो नेम्स कॉलम नेम्स आप रख सकते हो। लास्ट टाइम जब बना के देख रहे थे तो हम देख रहे थे रैंडम से 1 2 कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे थे, बट इफ यू वांट टू कीप प्रॉपर नेम्स यू यस यू कैन एंटर प्रॉपर नेम्स। हाउएवर अगेन प्रैक्टिकली दिक्कत है, क्या दिक्कत है मैट्रिक्स की? कोई याद दिलाएगा जरा मेरे को? मैट्रिक्स में करेक्टर की प्रॉब्लम फॉर्म था, में ले 2D स्ट्रक्चर तो है। हाँ जी, समथिंग। करेक्टर की फॉर्म में ले रहा था वो सब। यस, और कोई थोड़ा सा, हाँ जरा स्ट्रक्चर बताएगा इस आंसर को? दिस इज नॉट ओके, आंसर इज ठीक है लेकिन बड़ा क्रूड है। डेटा टाइप ऑल विल बी कैरेक्टर, बट व्हेन इट विल बी कैरेक्टर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को। कहाँ था माई मैट्रिक्स, ये रहा माई मैट्रिक्स। कुछ डेस्टिनेशन है, कुछ सोर्स है फ्लाइट के, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना कितना है, ऐसी एक मैट्रिक्स बन रही है। बहुत बढ़िया। अरे कहाँ दिख रहा है करेक्टर, सारे नंबर तो हैं।
हाँ यस, थैंकफुली ऐसा बोलो. You understand the topic, you understand the concept, that's perfectly fine, but you should be able to explain also. जब कोई क्वेश्चन करता है तो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना अपना आंसर. मैट्रिक्स के साथ प्रॉब्लम कुछ नहीं है. इफ देयर इज होमोजेनियस डेटा, होमोजेनियस मीन्स सबका डेटा टाइप एक जैसा है, तो बहुत अच्छी बात है. बट इफ देयर इज मिक्स एंड मैच ऑफ डेटा टाइप, then matrix will have a tendency to convert everything into the upper data type available, the preferred data type. अगर कैरेक्टर नंबर्स का मिक्स एंड मैच हुआ, सब कैरेक्टर हो जाएगा. अगर नंबर लॉजिकल का मिक्स एंड मैच हुआ, सब नंबर्स में चले जाएंगे. By row is equal to true, by row is equal to true here means that values will be filled by row first. Perhaps we established that last weekend itself, जब लिस्ट के लिए मैट्रिक्स बना रहे थे. Remember that? Perform matrix kind of. Well, fine enough. Phew. It was supposed to take 10 minutes. It has already taken half an hour. I was not expecting this. Okay, very fine. Shall we continue something new now? All set? All ready? Just crack your fingers. Okay, fine. So guys, this time you are having a dataset with you, that is bank dataset. देखा था क्या हमने पहले रीड करके? पहले भी भेजा क्या मैंने ये आपको? डेटासेट भेज दिया था क्या मैंने आपको? Okay, very fine. Just today we are starting. So what I will be doing is I'll keep showing you on my screen, and जब मेरे को लगेगा कि कोई कोड ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आपको जस्ट पहले से पहले सब टाइप करने की जरूरत नहीं है. स्टे विथ मी, मैं चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा. बट अब मैं वन गो में आपको पूरी फाइल नहीं भेजूंगा, ठीक है? In between, I will want you to code by yourselves, and let's see how it turns up. सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. एक सिली क्वेश्चन है. सर ये जो हमारा एनवायरनमेंट नहीं है, हाँ. जहाँ पे हमारा ये सब सेव्ड है, हाँ. अगर मैं इसको क्लियर कर दूंगा तो जितना भी मेरा एग्जिस्टिंग डेटा जो मैंने ऐसे सेव कर रखा है वो सब गायब हो जाएगा. Data, yes, of course. In fact, I want you to clean your environment, clean your history. When you will deal with a new data set, we'll treat it like a new project, so everything clean. अगर existing variable हुए आपके environment पे, they will do two harms. Number one, they will consume memory, तो आपका process slow कर देंगे. मतलब ऐसे नहीं कि ये 8-10 variable कुछ slow कर देंगे, इससे तो पता भी नहीं चलेगा. But anyway, it is a good practice. Secondly, अगर variable पहले से हुए environment पे, तो confuse करेंगे कहीं ना कहीं. पहले से कोई तो variable एनवायरनमेंट हिस्ट्री सब क्लियर कर दें. ABC बैठा. Yes, do clear. And I would request not to switch on your mic. Just drop in the chat box for these nitty-gritty questions. Fine. Now we have a data set and we know that R doesn't know your machine. R आपके पूरे machine से बात नहीं करेगा. R will only talk to one folder on your machine. डेटा एनालिसिस R सिर्फ उसको करेगा जो उसके एनवायरनमेंट पे होगा. एनवायरनमेंट पे जो लाना है वो हम अभी मशीन से कैसे लाएंगे. लेट्स हैव अ लुक. पे अटेंशन टू माय स्क्रीन फॉर वंस. उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि हमारा R हमारा कौन से फोल्डर से बात करने वाला है. उसको हम बोल रहे हैं वर्किंग डायरेक्टरी.
You see this session tab on the top. Click on this session tab. Within that session tab, you see working directory, set working directory. There is an option, set working directory, and then there is again a drop down. It has choose directory. So everybody, please do that. Come to this choose directory, and when you click on this choose directory, there will be a pop-up of choosing a location. Done, everybody? Not audible? No, it was that I was not speaking. I was waiting for you to update me whether you are done with or not. तो आपने जो डेटा सेट डाउनलोड किया होगा, one thing that is advised, don't keep it on your C drive. Usually your document folder or download folders, they are on your C drive. If you are using your company PC, it will it will trouble someday. तो बेटर है कि अपना डेटा जो भी आपने किया है दूसरे सी ड्राइव पे वैसे भी नहीं रहना चाहिए फालतू चीजें. ब्रिंग इट टू दिस डी ड्राइव और ई ड्राइव जहां पर भी है, एक फोल्डर बना दीजिए जहां पर आपका डेटा सेट रहेगा. नाउ सपोज मेरा डेटा सेट इसमें है DSP-R फोल्डर में. If I have a data in DSP-R folder and I am choosing this location, I have chosen DSP-R, but you see data set is not visible. Data set नहीं दिखेगा यहाँ पे. ये सिर्फ फोल्डर चूज करने की बात कर रहे हैं. We are not choosing file, we are choosing directory. When I choose open, हाँ नागेंद्र, एंड ऑफ द डे पाथ ही दे रहे हैं. यू वांट टू टाइप इट, गो अहेड, वेरी वेलकम. एक्चुअली एक कमांड रन होता है इससे, setwd. setwd is function for setting working directory. What's not happening, Vatsal, in your system? When you have selected working directory, यहाँ पे कंसोल के नीचे देख रहे हो जस्ट, यहाँ पे उसी फोल्डर का नाम आने लगेगा. इट शोज, इट इज हिंटिंग यू दैट व्हाट इज द वर्किंग डायरेक्टरी करंटली. चेक इट आउट. इज इट द सेम फोल्डर जहाँ पर डेटा सेट है आपका? No, it is not necessary, Manish. It is just for your convenience. If you are using your employer's PC, they may be आपका C drive हो सकता है सिक्योर किया हुआ उन्होंने, या कुछ ना कुछ ऐसा परेशान करते हैं. If it is happening, then it is all good. Desktop folder पे रख सकते हो, no problem. Vatsal, you have downloaded file, and in which folder you have downloaded? Maybe it is in downloads, or maybe it is on desktop, something like that. You have nothing to do with Excel checker. तुम्हें वो फाइल नहीं दिखेगी वहां पे. तुम्हें फोल्डर चूज करना है, फाइल चूज नहीं करना है. वी आर चूजिंग वर्किंग डायरेक्टरी, वी आर नॉट चूजिंग द डेटा सेट. डेटा सेट अभी बाद में रीड करेंगे.
हाँ वत्सल, तुम्हें डेटा सेट नहीं दिखेगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन से फोल्डर में सेव किया है। यू जस्ट हैव टू चूज दैट फोल्डर। फोल्डर के अंदर डेटा सेट देखने की कोशिश करोगे, वो नहीं दिखेगा। That's perfectly fine, Shekhar. I am assuming that this DSP-R, this is the folder in which you have saved this dataset. No, we are not learning Excel, Abhilasha. We don't need to do any deal anything with Excel. अभी Excel की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ छोड़ दो उसको. Vatsal, I am making you presenter. Just show me what you are doing. Your presenter, share the screen, please. Your bank data set. It is saved in your set working directory. Choose directory. Choose downloads and open. No, not that folder. The downloads folder. Yes. Click on open down below. No, you have chosen that MSVACR folder. I did not want that folder. Data वहां पर नहीं है, data उससे बाहर है. सर वो डाउनलोड्स में और कुछ दिखाई नहीं रहा। हाँ तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि दिखेगा नहीं डेटा। सेशंस में जाओ, डेटा सेट नहीं दिखेगा, तुम्हें सिर्फ फोल्डर चूज करना है जिसमें डेटा सेट है। चूज डायरेक्टरी, डाउनलोड, बस ओपन। सिंस डाउनलोड्स इज अ फोल्डर जहाँ पर डेटा सेट है, एंड नाउ यू सी दैट वर्किंग डायरेक्टरी सेट टू डाउनलोड्स। ऑल सेट, यहाँ तक ठीक है? ठीक है, आई एम टेकिंग बैक स्क्रीन। Here in the chat box, you just have to copy paste now. For now, the function name is read.csv and the syntax is we give files full name in double quotes. For now लिख लो जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, bank.csv जैसा भी मैंने लिख रखा है, मान लो मेरी बात, and just see what happens when we execute this. There should be a variable coming upon in your environment named bank. रिपीट, अभी तो कुछ बोला ही नहीं मनप्रीत। वो जस्ट कॉपी पेस्ट करना, मैंने चैट बॉक्स में डाला है रीडिंग CSV। चैट बॉक्स में एक फंक्शन डाला है मैंने, जस्ट उसे उठा करके कॉपी पेस्ट करो और रन कर दो। और जैसा मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, देयर शुड बी अ वेरिएबल बैंक विच शुड कम इन योर एनवायरनमेंट नाउ। कितने लोगों को वेरिएबल आ गया, कितने लोगों को एरर आ गया, कितनों की वार्निंग आ गई है, बताना जरा। वेरिएबल बन गया सबका या किसी की लाल कलम से लिख दिया आर ने कुछ किसी के लिए? क्या बात कर रहे हो, एक ही बार में कर दोगे क्या सारे के सारे? हर बैच में ये मेरा 1 घंटे का प्रोजेक्ट होता है कि ये वेरिएबल आ जाए एनवायरनमेंट में किसी तरह। कभी किसी का कुछ फंस जाता है, कभी किसी का कुछ हो जाता है, किसी का सिस्टम क्रैश हो गया, किसी की वार्निंग, किसी किसी की एरर। वेरिएबल वत्सल, वेरिएबल एनवायरनमेंट पे देखो,
एनवायरनमेंट में एक वेरिएबल आ गया होगा बैंक नाम का। अरे यहाँ यहाँ ये रहा, बैंक वेरिएबल बन गया ना। क्या पता चल रहा है यहाँ से? एक बैंक नाम का डेटा सेट हमने स्टोर किया है बैंक वेरिएबल नाम से। इसमें 45,000 ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस यानी रोज। 10 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स यानी कॉलम्स। ठीक है जी। अब बताता हूँ ये हुआ क्या है तुम्हारे साथ। ये सीएसवी क्या नौबत है? कितने लोगों को पता है अच्छा है सीएसवी यहाँ पर ऑलरेडी? कोई तो होगा। सी दिखाता हूँ। जैसे ये डेटा सेट है आपका एंड यू सी, अगर इसका डेटा टाइप देखोगे इट विल, देखने में ये एक्सेल फाइल जैसे ही लग रहा है। और मैं आप लोगों को मना कर रहा था खोलने की जरूरत नहीं है, बट चलो मैं दिखा देता हूँ, छोड़ो। देखने में तो एक्सेल शीट जैसे ही लग रहा है। फिर सीएसवी सीएसवी क्या बोल रहे हैं हम इसको? See what happens is CSV stands for comma separated values. पर हमने बात किया था ये किसी दिन कि ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा ऐसे एक्सेल शीट में नहीं रह सकता, क्योंकि अगर किसी ने एक्सेल शीट में रखा तो कोई पीडीएफ में रखेगा, कोई वर्ड में रखेगा। दैट इज नॉट एक्चुअली अ डेटाबेस, नॉट अ फॉर्मल डेटाबेस। कहने के लिए डेटाबेस बोल सकते हो आप उसको। तो organizations, whenever organizations use, they use some server or maybe cloud service or something to keep that data. और जब सर्वर पे डेटा रहता है, इट विल नॉट बी लाइक दिस सेल फॉर्म, इट विल बी इन अ सिंगल रो। अगर मैं रो नंबर 1 की बात करूं तो उसमें वैल्यूज किस तरह से आएंगी? रो नंबर इज दिस। पहला कॉलम अगर मेरे को एज रखना था तो एज भर दो उसमें सीधे, कॉमा लगाने के बाद नाम लिखना था तो नाम लिख दो, कॉमा। समझ पा रहे हो? इट इज जस्ट लाइक एक्सेल की इसी सेल में। लाइक मेरे को अगर ये वाली रो एंटर करनी थी एक्सेल में, तो मैं उसे कैसे एंटर कर रहा हूँ? मैं एक ही सेल में एंटर करते जा रहा हूँ। 58 कॉमा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नहीं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कॉमा 1 लाख कॉमा मैरिड एंड सो ऑन। गेटिंग द जस्ट? एक ही लाइन में मैंने सारे कॉमा सेपरेट करके वैल्यूज लिख दी हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो फिर ये एक्सेल में हमें ऐसे अच्छे से क्यों दिखाई दे रही हैं? इट इज बिकॉज एक्सेल हैज डेवलप्ड टू ए डिसेंट लेवल, और एक्सेल को ऑलरेडी मालूम है कि दैट दीज आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एंड वो बाय डिफॉल्ट उनको सेल्स में सेग्रीगेट करके दिखा देता है। ठीक है जी। तो CSV इज नॉट एज सेम एज एक्सेल एसेट्स फॉर्मेट जो आप एक्सेल का देखते आ रहे हो। इट इज अ बिट डिफरेंट। देखने में एक्सेल जैसा ही लग रहा है, बट एंड वेरी ऑफन देन नॉट डेटा आपको ऐसे ही मिलेगा। जब भी आपका डेटा किसी सर्वर से डाउनलोड होकर के आता है, इट इज यूजुअली इन CSV फॉर्मेट। तो 90% ऑफ द टाइम्स यू विल बी डीलिंग विद CSV फॉर्म ओनली। तो हमने कैसे लिखा है? फाइल का नाम बैंक डॉट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या था? CSV। और इस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं। रीड करने के लिए द फंक्शन इज, अगेन दिस इज अ फंक्शन, रीड डॉट CSV पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब फंक्शन। तो फंक्शन नेम इज रीड डॉट CSV ब्रैकेट बैंक डॉट CSV इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। If we check class of this, class is data frame। हमने देखा था कि मेरा डेटा तो किसी भी स्ट्रक्चर में आ सकता है। कोई कॉलम नंबर होगा, कोई कैरेक्टर होगा, कोई लॉजिकल होगा।
what is the benefit of this? It is not because of some benefit or some upside or downside, Manish. It is the way it is for now. Yes, extension देना पड़ेगा नागेंद्र. मोनिका दोनों काम हो सकते हैं. एक्सेल फाइल डायरेक्ट भी रीड हो सकता है और यू कैन कन्वर्ट इट टू CSV also. If someday it happens you don't remember this what is the function, or maybe you have some different form of file, here it is, you can import dataset. यहाँ पर देख रहे हो, again RStudio comes to your help. There is a tab import dataset. You just have to click and choose which type of file you have. Is it a text file, is it Excel, is it from SPSS, is it from SAS, and you can choose a number of files. So what do we see? Read.csv. R is smart. It has automatically imported the data as data frame. वही चाहिए था मेरे को. Eventually data frame ही मेरे काम का है. If you check a structure, what do you see? What do you see? Is there something different? Something is different. आप लोगों के वर्जन में स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स नहीं होता है. आप लोगों के उसमें वर्जन में स्ट्रिंग्स कैरेक्टर में जा रहे होंगे. मेरे वर्जन में स्ट्रिंग्स फैक्टर में चले जाएंगे इफ आई डोंट स्टॉप देम. बट एनीवे आई हैव नॉट स्टॉप देम फॉर अ रीजन. जो आप लोग नहीं देख पा रहे होगे वो मैं देख पा रहा हूँ. जो कैरेक्टर कॉलम से I can see some information about how many categories they have. आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा होगा कि जॉब में 12 कैटेगरीज हैं. There are 12 kinds of job roles of the customers of this bank. अरे बताओ, नहीं देख पा रहे हो? मैं देख पा रहा हूँ. कुछ बेनिफिट है इस बात का? कुछ फायदा है इस बात का? बताऊँ अभी? कभी कभी फायदा हो जाता है, कभी कभी कुछ चीजें यहीं पर पकड़ में आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, you see marital status, and in my case it is telling me that it is a factor with 4 levels. Marital status में there are 4 levels, 4 categories essentially. Tell me what can be the 4 categories in marital status. I can think of only 3. Single, married, divorced. That's sorted. ना अभिलाषा, NA तो NA है, वो तो मिसिंग वैल्यू है, वो कैटेगरी नहीं है. Manish, separated is as good as divorced. So what is the difference? Widow, okay, maybe possible. चलो मान सकते हैं. It's complicated. It's complicated Vatsal. अगर ये मैरिटल स्टेटस है तो फिर एक और मैरिटल स्टेटस बताऊं. Committed since Valentine's Day 2020. फिर तो वो भी होना चाहिए. So get the gist. Start to understand things. See, you should become inquisitive now. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? जैसे मैरिटल, जैसे किसी ने बोला, हाँ मेरे समझ आया, सही बात है, हो सकता है, या मे बी इट इज अ डेटा एनोमली. डेटा एनोमली लाइक, हो सकता है मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर ने, एक ने डिवोर्स लिख दिया है, एक ने सेपरेटेड लिख दिया है. इवेंचुअली इट मीन्स द सेम. It is just that formally it is called divorced,
but in US it is more popular as separated. So both may be entries here. I don't know, but I should have a look now. Moreover, okay, let's come down. You see this housing? It says that it is factor with 3 levels. And what are the 3 levels? Remember, we talked about case mismatch, data anomaly, formatting का anomaly हो सकता है, आ गया. There is no, then there is yes, and then there is capital yes. Now common sense से हमें मालूम है कि दोनों yes का मतलब एक ही है. अब वो R को नहीं पता ना. Due to its case sensitive nature, R को लग रहा है 3 कैटेगरीज हो गई हैं. ठीक है जी. तो कुछ कुछ डेटा एनोमली पकड़ में आ जाते हैं. इसलिए फैक्टर डेटा टाइप हमें लग तो रही थी बहुत बुरी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है. कभी कभी काम आती है. तो अब क्या करोगे आप? टाइप हियर स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स. जैसा आप टाइप करोगे ऑटो सजेशन आ जाएगा. स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स एंड सेट इट टू ट्रू. मेरे उसमें बाय डिफॉल्ट ट्रू था, आपको करना पड़ेगा ये. डन विद दिस. और अब स्ट्रक्चर आप चेक करोगे तो आपके पास स्ट्रक्चर मेरे जैसे ही आ जाएगा, जैसा मेरे पास आ रहा था. तो जो एनोमलीज मैं अभी देख पा रहा था, या जो चीज़ें मेरे को लग रही थी दैट दीज आर सस्पिशियस केसेस, नाउ यू कैन आल्सो हैव अ कंसर्न लुक एट देम. सॉरी सर, आपका बाय डिफॉल्ट कैसे आ रहा था? It is because of R version. My R version is older, yours is latest, so R has gone through upgrades. तो उसमें ऐसे सेटिंग्स थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती हैं. It has been by default set to true for very long time. Recently they have converted it to false. Usually it is the way it is. रहना भी false ही चाहिए वैसे, जो आपके वर्जन में है. रिमेंबर हमने बात किया था कि इनिशियली मेरे को फैक्टर नहीं चाहिए होता. I don't like it. Not really, it is a matter of like or dislike. It is not beneficial. ओके, चलो ट्रू करके आपने देख लिया. तो ट्रू फॉल्स क्या होता है आप सेट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मेरे को मैनुअली करना पड़ेगा. तो मैंने अब कर लिया है. अब फाइनली खैर मैं अभी वैसे चल रहा हूँ जैसे डेटा एनालिसिस मेरे को करना है. Vatsal, I am not saying that you have to convert. I am just trying to show you the difference. If you have read it as character, तो वो कैसा दिखता है. जब फैक्टर में रखते हो तो वो कैसा दिखता है. पहले से पहले मैं नहीं चाहता कुछ भी फैक्टर में आए. क्यों? क्योंकि फैक्टर डेटा टाइप नई कैटेगरीज को एंटर नहीं होने देगा. मेरे को जो डेटा मैनिपुलेशन करना है उसमें वो मेरे को हैम्पर करेगा. तो इवेंचुअली मेरे को भी कैरेक्टर में ही लाना पड़ेगा. डेटा एनालिसिस तभी करूंगा. आपके उसमें बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर रीड हुआ है, मैंने मैनुअली उसे कन्वर्ट किया है कैरेक्टर. ओके, देखिए तो क्या हो रहा है इस कोड से. व्हाट्स हैपनिंग विद दिस. ट्राई कर लो खुद भी रन करके.
If you are way too lazy after lunch, here in the chat box, just copy paste and run. टाइप कर रहे हो, बहुत अच्छा है. हाँ जी, ऊपर वाले कोड से पूरा कॉलम प्रिंट हो गया. नीचे वाले कोड में फर्स्ट रो प्रिंट हो गई. ठीक है, जो कॉलम प्रिंट हुआ है वो कौन सा कॉलम है? एज कॉलम है. और एज कॉलम में कोई 45,000 रोज हैं. मतलब नॉट कॉलम में 45, डेटा में कोई 45,000 रोज हैं. तो एसेंशियली आपने क्या किया है, 45,000 लोगों की एज प्रिंट करा ली है. और क्या देखा फिर आपने? प्रिंट हो गई. 45,000 लोगों की एज प्रिंट हो गई. क्या कर लोगे अब इसका? हाँ, मतलब 1,000 वैल्यू प्रिंट हुई हैं. और उसके बाद आपने बोला कि ओमिटेड बाकी 44,000 ओमिट कर दिए हैं. हाँ, तो आर भी आपसे वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि क्या कर लोगे प्रिंट करा के? अगर वो बाकी प्रिंट कर भी देता तभी का बिगाड़ लेते. एक्चुअली प्रिंट करने से कुछ हो नहीं रहा. ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है. हाँ, तो इसी के लिए हमने क्या सोचा था, कुछ और तरीके सोचे थे. जैसे स्ट्रक्चर देखा है, वी कैन सी हेड ऑल्सो, जिससे मुझे समझ आया कि ये डेटा किस बारे में बात करता है. रिमेंबर, हेड फंक्शन, टेल फंक्शन, स्ट्रक्चर, समरी, इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ा सा समझ आता है कि ये डेटा सेट किस बारे में बात करता है. एंड देन देयर इज माई फेवरेट. व्हाट इज दिस इज माई फेवरेट. आई डोंट नो which one of is which one of these kinds is your favorite. My favorite is view. Just click. मेरे को हेड टेल से बेटर थोड़ा सा ये लगता है, बाकी कुछ भी देखने से. ओके. हाँ, वी स्मॉल बना लिया होगा ना शेखर? फंक्शन में वी कैपिटल होता है, तुमने स्मॉल बनाया होगा, जरा देखो ऐसे ही हुआ है क्या? हाँ, नहीं, ओके तो ठीक है, देख के बताओ ना ऐसा ही हुआ है क्या. यू सी हाउ प्रेडिक्टेबल यू पीपल आर. अभी तो 2-4 लेक्चर हुए हैं, वो तो अच्छे से मालूम है ना. आर इज केस सेंसिटिव. गला सूख गया मेरा बोलते बोलते. और तुम भी मत मानो, आर भी नहीं मानेगा. ओके, दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन which is important people, जिसके बारे में डिटेल बात हम बाद में करेंगे. देर आर सेवरल स्टेजेस जो एनालिटिक्स में एज डेटा साइंटिस्ट यू विल हैव टू फॉलो. दिस स्टेज इज कॉल्ड, द वेरी फर्स्ट इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. Before I analyze anything or before I fool around with the data in any way, first it is important to understand what is this business, how this industry functions. ये डेटा सेट जो मेरे हाथ लगा है, ये डेटा क्या क्या है, इसमें किस चीज का मतलब क्या है. लेट्स सी. देख रहे हो, अभी एक्सेल खोलने की जरूरत तो नहीं पड़ी किसी को. चल रहा है ठीक ठाक.
ये डेटा सेट आया था, आर में हमने इंपोर्ट कर लिया। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड किस बारे में बात कर रहा है डेटा। क्या कह रहा है वात्सल? कभी कभी लगता है अपने को, मतलब ये क्या, ये तुम्हें लगता है कि मेरे को लगता है? मतलब मुझे तो रोज ही लगता है। मेरी छोड़ो, अपने बताओ। पर आपको लग रहा है, आपने बोला ना कि देख लो तुम कितने प्रिडिक्टेबल हो, अच्छा। तो इसलिए बोला। ये कुछ बैंक के कस्टमर्स का डेटा है, और बैंक इन कस्टमर्स के बारे में क्या क्या रिकॉर्ड कर रहा है। कस्टमर्स की एज, ओके, कुछ करना होगा उनका एज के बारे में। हाँ सही बात है, जब पैन नंबर ले लेते हैं वो तुम्हारा, तो वो डेट ऑफ बर्थ चली जाती है ना, एज वो बता सकते हैं आपकी। ठीक है लड़कियों, तो बैंक जब पैन कार्ड मांगे देना नहीं। जॉब प्रोफाइल, कौन किस में जॉब करता है। मैनेजमेंट है, टेक्नीशियन है, ब्लू कॉलर है, काइंड ऑफ बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं। अभी देखे थे हमने जब फैक्टर में रीड कर लिया था, तो 12 टाइप्स ऑफ जॉब प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं। सैलरी, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस। सैलरी होगा इन कुछ लोगों का। हाँ एक चीज वैसे सस्पिशियस लग रही है, देख रहे हो, है ना, किसी ने अपनी सैलरी 0 बताई है। मिसिंग डेटा नहीं है अभिलाषा, 0 इज नॉट मिसिंग। 0 लिखा तो है 0। अरे दुनिया भर में गणित पे राज किया है हमने, इस 0 के बेसिस पे तुम 0 को मिसिंग वैल्यू बता रहे हो। इस बंदे का जॉब प्रोफाइल भी अननोन है। हाँ कुछ लग नहीं रहे लक्षण ठीक इसके। चलो कोई नहीं, बाद में सोचेंगे क्या करना है। देन देयर इज मैरिटल स्टेटस, ओके। सिंगल मैरिड, डिवोर्स मैरिड, सिंगल 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 डिवोर्स। देखो अभी तो पता नहीं चल रहा वो चौथी कैटेगरी क्या है, पर ठीक है, सोचेंगे क्या करना है। एडुकेशन, हाँ एडुकेशन भी देख रहे हैं वो अपने कस्टमर्स की, बैंक के। लेकिन एडुकेशन वो इस तरह से नहीं देख रहे कि BA BCom BTech MTech काइंड ऑफ थिंग। उनका अपना कुछ कोडिंग है, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी। कुछ लोगों का अननोन भी है, बता नहीं रहे। ओके, यहाँ तक सब डेटा हमें समझ आ रहा है। देन देयर इज टारगेटेड कॉलम, यस नो नो यस, यस नो नो यस। इसका मतलब क्या हुआ? एनी एस्टिमेट गेस्टिमेट? Targeting those customers for maybe some loan offer scheme, okay, based on the data they provide. And Vatsal says, okay, Varun, okay. So here is your another lesson. Don't jump onto conclusion way too much. Targeted, हाँ ठीक है, आप लोगों को मैंने बोला था कि जस्ट टेक अ गेस, तो you have started to take take the guess literally, समझते हैं इसको। देन देयर इज बैलेंस। बैलेंस मतलब जब भी कोई लोन वगैरह लेता है कस्टमर, इवन आप लोगों में से किसी ने लिया होगा, तो एक सेविंग्स अकाउंट उसके साथ लिंक्ड रहता है, तो उसमें बैलेंस कुछ मेंटेन करना पड़ता है। देयर इज सम मिनिमम लिमिट, ऐसा कुछ रहता होगा ना, लिया होगा लोन आप लोगों को पता होगा जिसने। सो हाउ मच बैलेंस दिस कस्टमर इज मेंटेनिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग। हाउसिंग, अगेन यस नो नो यस।
टारगेटेड को छोड़ दो, अभी टारगेट की बात बाद में करते हैं। हाउसिंग, इसका मतलब क्या हुआ? होम लोन है या ओन हाउस और रेंटेड है? हाँ एग्जैक्टली अभिलाषा। सी एक्चुअली हाउसिंग वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बिल्कुल बहुत रीजनेबल कॉलम है ये, जो अगर बैंक रिकॉर्ड कर रहा है कोई, तो बैंक जब भी लोन करता है बैंक किसी कस्टमर को, इट इज द बैंक इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि उसका अकाउंट, ये इट इज नॉट एसेंशियली हाउसिंग लोन। हाउसिंग डज नॉट मीन हाउसिंग लोन, इट मे बी अ कार लोन ऑल्सो, इट मे बी अ पर्सनल लोन और एडुकेशन लोन। बैंक का इंटरेस्ट ये बहुत जानने में रहता है कि उसकी प्रॉपर्टी वो खुद की है, इज ही और शी लिविंग इन देयर ओन हाउस, और इट इज अ रेंटेड प्रॉपर्टी। You know why? It is because yes, one is वो collateral में तो अभी कोई collateral नहीं होता है इस तरह से व्हाट्सएप। collateral means के गिरवी रख दिया तुमने। बैंक can possess that property if you are not able to repay, even if it is not collateral, even then बैंक का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। हाँ मॉर्टगेज बोलो या collateral बोलो शेखर, मैं कह रहा हूँ कि अगर मॉर्टगेज नहीं भी किया है, collateral नहीं भी है, तो भी बैंक का बहुत इंटरेस्ट रहता है। इट इज बिकॉज से आपने कार लोन लिया है एंड यू आर लिविंग इन योर ओन प्रॉपर्टी, तो बैंक को एक सर्टेन कंफर्ट रहेगा। नंबर वन, यू आर नॉट पेइंग रेंट, तो यू हैव स्पेयर इनकम एज कंपेयर टू अ रेंटेड अकोमोडेशन। एक तरह से इनकम ही बच रही है ना वो आपकी, तो शायद आपकी पावर ज्यादा है लोन रिपे करने की। सेकंड, इफ यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस, बैंक कैन नॉट mortgage it, bank cannot possess it, that is one thing, that's okay, but even then bank can make mental pressure on you। अगर आप रिपे नहीं कर रहे हैं, बैंक आएगा आपके, बैंक घर से भाग के तो नहीं जाओगे ना, बैंक लोन के पीछे घर पे ही मिलोगे, नेबर्स भी होंगे, उनके सामने दो चार बातें सुना दें आपको, शायद आप शर्म के मारे पे कर दो। आई होप, I mean these are the facts I am talking about, I hope and they are making sense। यस, तो हाउसिंग में बैंक का इंटरेस्ट इसके लिए रहता है कि इन केस थिंग्स गो साउथ, देन बैंक कैन प्ले सम ग्रेट ट्रिक्स ऑन यू। अगर आप अपने रेंटेड अकोमोडेशन पे रह रहे हो, अगर रेंटेड अकोमोडेशन पे रह रहे हो, फिर क्या है, फिर तो उठाऊ दे रहा है तुम्हारा, किसी भी दिन उठ के चल दोगे यहाँ से। सो दैट्स हाउसिंग। वही रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कौन कस्टमर अपने खुद के अकोमोडेशन में रह रहा है एंड हु इज लिविंग इन रेंटेड अकोमोडेशन। देन देयर इज कॉन्टेक्ट कॉलम, अननोन अननोन, मेजॉरिटी का अननोन है, कुछ लोगों का ईमेल वगैरह है, ओके। मे बी कॉन्टेक्ट मीडियम कुछ रख रहे हैं वो, कि कितने लोगों का क्या कॉन्टेक्ट मीडियम हमारे पास अवेलेबल है, दैट्स दिस। एंड लास्टली डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मीन्स नो 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 नो, एक यस भी है, फिर नो नो नो। अच्छा ठीक है, लास्ट तक तो पता नहीं कितने होंगे, पर यहाँ तो मेजरली नो दिख रहे हैं। वन इज यस। सो डिफॉल्ट मीन्स डिफॉल्ट मीन्स हाँ यस, उसने लोन लिया और पे बैक नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। नाउ आई एम आस्किंग अगेन, अब कुछ समझ आ रही है कहानी, किस बारे में बात कर रहा है डेटा? दिस इज टॉकिंग अबाउट सम कस्टमर्स who took loan from bank, we don't know which kind of loan, maybe it was a credit card, maybe it was education loan, maybe car loan, bike loan, whatsoever it was, और उनके वेरियस पैरामीटर्स बैंक ने रिकॉर्ड किए हुए हैं
एंड फाइनली बैंक ने ये देखा कि किन कस्टमर्स ने डिफॉल्ट किया, किन लोगों ने नहीं किया, एंड बेसिस दिस डेटा मे बी दे वांट टू एनालाइज कि आर देयर एनी फैक्टर्स जिनसे हमें समझ आए कि कौन कस्टमर डिफॉल्ट कर देते हैं। सही बात है ना, अगर पता चल जाए ऐसा कुछ पैरामीटर, कुछ ऐसे लक्षण पहले ही दिख जाएं कि ऐसे कस्टमर तो डिफॉल्ट करते हैं, लॉस बच जाएगा। गेटिंग बैक टू दिस इंटरेस्टिंग कॉलम, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी लेकिन छोड़ दी थी। अब समझ आया ये टारगेटेड का मतलब क्या हुआ? नो, दिस इज नॉट हिट लिस्ट मनीष। सी, बैंक के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, टारगेटेड का मतलब क्या है। कस्टमर को लोन दो तरह से हो सकता है कि कस्टमर बैंक से लोन ले ले। एक तरीका कि कस्टमर वॉक इन आया, ब्रांच में आया, उसने बोला मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरा क्रेडेंशियल्स है एंड आई नीड लोन फॉर दिस 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 एसेट। दूसरा तरीका, वो जो तुम्हें फोन आते होंगे ना, जो लोग जॉब प्रोफाइल में हो उन्हें मालूम होगा, फोन आता है ना, इंश्योरेंस ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये वाला क्रेडिट कार्ड, ये वाले फीचर, पर्सनल लोन अप्रूव कर देते हैं, अभी ये ऑफर चल रहा है। और दोज हु आर इन जॉब, दे विल सर्टेनली दे आर गेटिंग दीज कॉल्स। उस टारगेटिंग की बात हो रही है कि वेदर ये कस्टमर वॉक इन था बैंक में और आवर मार्केटिंग टीम टारगेटेड देम, द कस्टमर वाज टारगेटेड बाय आवर मे बी टेलीकॉलिंग टीम और मे बी ईमेलर्स और मे बी समथिंग, हमने बोला था उसको। तो अब ये कॉलम इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना। थिंक अबाउट इट, कोई ऐसा आदमी हो कि उसे टारगेट भी हमने किया था और उसने डिफॉल्ट भी कर दिया, तो बैंक पूछेगा ना मार्केटिंग टीम से कि क्यों गए थे इस लीचड़ आदमी के पास, क्यों टारगेट किया था इसको। सो दैट्स व्हाई दे आर रिकॉर्डिंग दिस, सो दैट इज टारगेटेड। ठीक है जी, रेडी फॉर सम एनालिसिस, देखें, ब्रेक कर लें थोड़ा सा। अ, अच्छा खासा हो गया सेशन। Nagendra, abind, I am not getting it, what does it mean, what's that supposed to mean? Abind user library, okay, these stay with me for this, अभी आज देखेंगे इनका समय। ये जो नाकारा वाला पेन है, जो बॉटम राइट वाला, जिसमें ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन काम नहीं आ रहा कुछ भी हेल्प के अलावा, इनफैक्ट हेल्प भी काम नहीं आ रहा कुछ खास, देखेंगे अभी थोड़ी सी देर में, इफ टाइम अलाउस। ओके, वेरी फाइन गाइस, सो इट्स सम, थोड़ा सा कोड मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। थोड़ा सा निटी-ग्रिटी कोड भेज रहा हूँ आप लोगों को, मे बी यू कैन रन इट एंड यू मे टेक अ फ्यू मिनट्स ब्रेक एंड वी विल रिज्यूम। हियर इट इज, जस्ट कॉपी पेस्ट, और देखिए क्या हो रहा है, समझ आ जाना चाहिए इसमें कुछ भी ऐसा कुछ तो, आई थिंक देखिए। हेलो। It's 3:47 by my clock, so let's resume at 3. Okay, maybe. Okay, guys.
See you then after the break. Continue. Hi again. Hope everybody is back. Just please ping me quickly so that I know who all are here, who is missing. Okay, I see most of you are here. Let's begin. So, guys, first things first. I have received a data, and the first thing I know is that I don't trust this data. I have to look for certain data anomalies. So let's deal with them one by one. Okay, क्या क्या data anomalies possible हैं इस data में? This is a raw data. It came from a source, and I'm not very confident about it. What are the anomalies possible? एक तो देख ही लिया अभी. Case mismatch, which we have just seen. किस में था? Housing column में. Let's correct it. So the functions are people 2 upper and 2 lower. Here in the chat box. Just copy paste कर लीजिए, बताना मेरे को देख करके. वन बाय वन रन करना. पहले 2 अपर वाला रन करके देखो डेटा सेट पे क्या चेंज हुआ है. करंटली अगर मैं डेटा देख रहा हूँ, इट इज समथिंग लाइक दिस, एंड हाउसिंग कॉलम इज yes no, and then there are somewhere there are capital yes. I don't know where, but they are there. That I know. So what we are doing is, I am saying, क्या कह रहा हूँ जी मैं, बैंक डॉलर हाउसिंग यानी बैंक डेटा फ्रेम का हाउसिंग कॉलम कन्वर्टेड टू अपर केस में कन्वर्ट हो जाए और कहाँ स्टोर हो जाए. असाइन कर रहा हूँ उसे कहाँ, सेम वहीं पे जो नाम था उसका है. तो एसेंशियली मैं क्या कर रहा हूँ, पुराने हाउसिंग कॉलम को ओवरराइट कर रहा हूँ इस नई वैल्यू से. सेम नाम पे अगर असाइन करते हैं तो क्या होता है, ओवरराइट हो जाता है ना. ये तो देखा था लास्ट टाइम. तो हाउसिंग कॉलम इज कन्वर्टेड टू अपर केस. डेटा अगर देखें तो डेटा कैसा हो गया अभी, ऑल अपर केस, ऑल इन कैपिटल्स. सेम गोज फॉर फंक्शन टू लोअर से क्या होता होगा, चाहे अपर केस हो या लोअर केस हो, जो कुछ भी है सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ईदर वे, विच एवर यू लाइक. आपको अपर केस अच्छा लगता है उसमें कर लो, लोअर केस अच्छा लगता है उसमें कर लो, लेकिन हाँ मेरे को ये पता है कि मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए. कहीं अपर कहीं लोअर होगा तो आर को लगेगा डिफरेंट कैटेगरीज हो रखी. ठीक है जी, कूल, बढ़िया. और क्या आने वाली थी किसी ने, अच्छा मिसिंग वैल्यू में बड़ा इंटरेस्ट है सबका, चलो ठीक है. व्हाट इज अनदर एनोमली पॉसिबल, मिसिंग रिकॉर्ड्स या मिसिंग वैल्यूज विच आर रिप्रेजेंटेड एज NA. देखा था हमने, NA आ जाता है वहां पर जहां मिसिंग वैल्यू दिखानी होती है आर को.
तो टू डिटेक्ट मिसिंग वैल्यूज NA इज स्पेशल कीवर्ड जिससे R को पता चलता है दिस इज अ मिसिंग वैल्यू, दिस इज नॉट अवेलेबल। व्हेन देयर इज अ स्पेशल कीवर्ड तो उसे डिटेक्ट करने के लिए भी देयर इज अ स्पेशल फंक्शन विच इज डॉट NA। जस्ट ट्राई दिस आउट, रन इट बाय योरसेल्फ और बताना मेरे को क्या हुआ। दिस हाईलाइटेड वन। डन हुआ गैस? हाँ जी। यस एग्जैक्टली। तो इस डॉट एन ए फंक्शन क्या करता है, इस फैमिली फंक्शन है, इस फैमिली फंक्शन हमेशा रिजल्ट देंगे ट्रू और फॉल्स में। इट इज जस्ट लाइक यू एंड मी टॉकिंग, मैंने शायद बोला है। तो आर इज जस्ट लाइक प्लेन इंग्लिश। आई एम आस्किंग आर इज दिस एन ए, इज समथिंग एन ए वेयर इन दिस डेटा फ्रेम। तो इस डॉट एन ए फंक्शन क्या करता है, वो इस डेटा सेट की हर सेल पे जाएगा, इट विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम सेल नंबर 1 और चेक करेगा इफ इट इज अ प्रॉपर वैल्यू। इफ इट इज अ प्रॉपर वैल्यू यानी एन ए नहीं हुआ तो बोलेगा फॉल्स, एंड इफ इट इज एन ए, अगर यहाँ पर एन ए ही था तो उसको बोल देगा ट्रू। वही रिजल्ट दिया है उसने, प्रिंट कर दिया है उसने सब, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ट्रू तो कहीं दिख नहीं रहा, खैर फॉल्स ही फॉल्स दिख रहा है सारा, पता नहीं कहीं पर ट्रू है कि नहीं है। विच ब्रिंग्स मी टू अनदर प्रॉब्लम। क्या हुआ है, ये वो हर रो पे गया, हर रो में वो चेक कर रहा है ये ट्रू है कि फॉल्स है कि ट्रू। एन ए है क्या, एन ए है क्या, एन ए है क्या, कोई एन ए नहीं है, तो सारे फॉल्स प्रिंट हो गए। अब मैं कहाँ तक देखता रहूँगा ऐसे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। 1000 रोज उसने इस तरह से वो नॉट 1000, 100 रोज उसने इस तरह से प्रिंट करके दिखाई हैं, और बाकी वो बता रहा है कि बाकी छोड़ो, क्या करोगे देख के प्रिंट। सेम प्रॉब्लम। हाँ यस वत्सल, जब जब इसने ये ट्रू तब बोलेगा जब इसको एन ए मिल जाएगा। इज डॉट एन ए नाम है ना उसका। आई एम आस्किंग इज इट एन ए, इफ इट इज एन ए इट विल से यस इट इज एन ए ट्रू। तो गाइस देयर इज अ वे टू फाइंड दैट आउट, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सम। क्या करता होगा ये फंक्शन, लेट्स प्ले अ ट्रिक। सम फंक्शन वही करता है जो नाम है इसका। मैंने बोला सम 1, 5 एंड इट टेल्स मी द सम ऑफ द टू वैल्यूज। नाउ थिंक अबाउट इट, ये जो इस डॉट एन ए है, इफ आई सम इट अप हियर इन द चैट बॉक्स, टाइप करना चाहते हो टाइप कर लो, ब्रैकेट्स में गलत मत कर देना। व्हाट आई एम डूइंग एसेंशियली, इस डॉट एन ए से तो रिजल्ट आया ट्रू एंड फॉल्स में, और अब मैं कह रहा हूँ ये जो ट्रू फॉल्स जो कुछ भी आया था उसे सम कर दो। ये जितनी भी वैल्यूज आई थी ट्रू फॉल्स की उनको टोटल कर दो। हाँ करेक्टर को तो नहीं करेगा नागेंद्र, बट करेक्टर है कहाँ, हम तो ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स करेक्टर नहीं है। ट्रू फॉल्स तो लॉजिकल ऑपरेटर है। और मेरे को एक और चीज़ पता है, दैट मैथमेटिकली ट्रू इज 1, फॉल्स इज 0। तो जो 0 है वो तो 0 ही हो गए, लेकिन जितने ट्रू हैं उन्हें काउंट कर देगा ये, और जब काउंट कर देगा तो मुझे पता लग जाएगा कितने वैल्यू मिसिंग है। अरे है कि नहीं, ट्रू प्लस ट्रू प्लस ट्रू
मैथमेटिकली 1+1+1 हो गया ना, ऐसे ही करके मुझे बता रहा है कि 12 ट्रू आए थे इसमें और फॉल्स जो थे वो तो सारे 0 थे। सो नाउ आई नो दैट देयर आर 12 मिसिंग वैल्यूज। अभी ये नहीं पता कहाँ है लेकिन है। Then there is a function coolsums here in the chat box. Try this one out and tell me what you see this time. Yes, now you realize that. सर तो अभी इसने सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो इसने अभी जो हमने कॉलम वाला कॉलम वाइज सम करा है, तो इसने अब सारे कॉलम्स के सम देख दिए हैं, सारे कॉलम्स को सम कर दिया मतलब। Yes, colsums is the function to find out किस कॉलम में ये कंडीशन आपका जो सम हो रहा है, ये ट्रू फॉल्स का जो सम हुआ है उसने कॉलम वाइज करके दिया है कि हर कॉलम में देख रहा है वैसे अलग अलग करके। अभी ओके ठीक है। अभी तक मुझे ये नहीं पता चला था कि मिसिंग वैल्यू तो हैं लेकिन कहाँ है। नाउ आई नो दे आर इन सैलरी कॉलम। ओके Okay, very well, fine enough. Yes, Ajit, there is similar function. You can give it a try. Very welcome to try. Like call sums, there is a function row sums. लेकिन row sums में देखोगे क्या? row sums में देखोगे तो दिखेगा क्या? Practically सोचो ना. Possible तो बहुत कुछ है. row sums करोगे मतलब this plus this plus this plus this. क्या मतलब है इसका? 58 plus management plus 1 lakh plus married. कितना हुआ? अल्टीमेटली कोई परेशान इंसान। एक तो मैनेजमेंट में ऊपर से मैरिड। बैड शेप। तो ठीक ठीक है, होने को तो बहुत कुछ है, अभी मिल जाएगा। ओके, मिसिंग वैल्यूज हमने थोड़ा थोड़ा सा देख लिया। चलो ओके, और किसी ने कुछ बोला था, और क्या हो सकता है? स्टे विद इट, क्योंकि अभी तक मिसिंग वैल्यू आया है, हमने किया कुछ नहीं है उसका, बस हमें ये बताया कि सैलरी कॉलम में ऐसे लोग हैं, 12 लोग हैं जिनका सैलरी मिसिंग है। डुप्लीकेसी, वेरी फाइन, देयर कैन बी डुप्लीकेट रोज। तो उसका भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। डुप्लीकेट रोज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। डुप्लीकेट रोज से मुझे परेशानी क्या है, एनोमली क्यों कह रहा हूँ मैं इसको? डुप्लीकेट रोज होने से प्रॉब्लम क्या है? भाई पहली बात तो ये है कि बेनिफिट कुछ नहीं है। बेनिफिट तो कुछ है नहीं, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई ओरिजिनल डेटा से, अब उसे कितनी भी बार डुप्लीकेट कर लूँ, नया इन्फॉर्मेशन तो कुछ आ नहीं रहा है। परेशानी नंबर 1, अननेसेसरी मैं डेटा बल्कि कर रहा हूँ। नाउ दिस इज अ नॉट वेरी लार्ज डेटा, दिस इज जस्ट अ डिसेंट 40-45,000 रोज। बट एनीवे अगर डुप्लीकेट हुए तो वो पता लगा अननेसेसरी बल्कि किया हुआ है, इट विल हिट मी इन द कॉस्ट ऑफ टाइम। सेकेंडली, यस नागेंद्र, डुप्लीकेट वैल्यूज की वजह से स्टैटिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे पूरे डेटा के, एंड आई विल एंड अप विद एरोनियस रिजल्ट्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस, who is duplicate? This is a person of management and this is also a person of management. Is this duplicate data?
देखो इनकी सैलरी भी सेम है। अब मानो इनको डुप्लीकेट डेटा, देखो ये मैरिड भी हैं, आर दे डुप्लीकेट? सी देयर एजुकेशन लेवल इज ऑल्सो टर्शियरी। समझ गए सब लोग? On the basis of 1 or 2 or 4 or 5 values, I am not going to call it a duplicate entry. But yes, if all the entries, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारी entries ही एज भी सेम है, बैलेंस भी सेम है, everything is same, then it becomes a suspicious case. Although it is not the case here, balance is different, age is different, it is not so. So got the gist? I will call it a duplicate entry when all the entries are duplicate, all the entries are same. So ऐसे ही फंक्शन काम करता है हमारा। द फंक्शन नेम इज डुप्लीकेट, हियर इन द चैट बॉक्स, नॉट डुप्लीकेट, द फंक्शन नेम इज डुप्लीकेटेड। इफ यू विश यू कैन टाइप इट इन। And check it for one. How is it comparing? Okay, and true and false. Okay, we have automated all data by row, or is it Jyoti says false. I am not getting what is false, but okay. कैसा काम कर रहा है डुप्लीकेटेड फंक्शन? अगर मैं इसको रन करके देखा खाली, it has given again results true false true false true false, 1000 true false प्रिंट हो गए हैं, 44000 उसने छोड़ दिए। कैसा काम किया है डुप्लीकेटेड फंक्शन ने? इट हैज, देखो पहली रो तो यूनिक ही होगी, पहली रो तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती ना किसी की, वो तो यूनिक है, तो उसमें तो फॉल्स ही आना है। फिर उसने सेकंड रो को उठाया और पहली रो से कंपेयर कर दिया। इफ ऑल एंट्रीज आर सेम इट विल से इट इज ट्रू, यस इट इज डुप्लीकेटेड। अगर एक भी डिफरेंट हुई इट विल से नो इट इज नॉट डुप्लीकेटेड नाउ। Then it will pick row number 3, compare it with 1 and compare it with 2. अगर इन दोनों में से किसी में भी उसने सारी एंट्रीज मैच हो गई it will call it duplicated, otherwise no. Then it will go to row number 4, compare it with 1 and 2 and 3 and so on. You realize this? What a tedious task R is doing. Just with a single word function duplicated, तुमने तो कह के छोड़ दिया, कितना काम लगा दिया उसकी जान को, and it is doing it in how much time? Fraction of a second. हाँ, it's hardly it is taking 1 second. बट मेरी प्रॉब्लम फिर वही है, ट्रू फॉल्स आगे मैं कब तक देखूं इसे ट्रू फॉल्स आए हैं कि नहीं आए हैं? मुझे तो फॉल्स ही फॉल्स दिख रहे हैं सारे। ये 45,000 वैल्यूज में क्या करूंगा? नहीं, अभी हमने एक ट्रिक देखा था, क्या देखा था? हाँ, सम कर देते हैं तो पता चल जाता है ट्रू कितने आए हैं। तो कर लो, जरा बताना कितने डुप्लीकेट है।
3391. Okay. ठीक है. हाँ सही कह रहे हो. 3391. कितने डुप्लीकेट वैल्यूज हैं? अब करना क्या है इनका? डुप्लीकेट के लिए हमें पता चल गया इतने डुप्लीकेट्स हैं. Now what do we want to do is we want to remove these duplicates. Only original data I want to keep. So guys, the function name is unique here in the chat box. मुझे किसी वेक्टर में से यूनिक वैल्यूज चाहिए तो आई कैन यूज यूनिक. मुझे किसी डेटा फ्रेम में से यूनिक रोज चाहिए. अगेन द फंक्शन इज यूनिक. इट विल रिमूव डुप्लीकेट रोज. चेक इट आउट. मैंने शायद प्रैक्टिस में कहीं भेजा था यूनिक फंक्शन. So sorry for interrupting. या Basically, what's up? हाँ व्हाट्सएप. सर यूनिक फंक्शन बेसिकली होता है इसलिए यूज है जितने भी डुप्लीकेटेड वैल्यूज होती हैं उन सबको रिमूव करने के लिए. यस. डुप्लीकेट वैल्यूज को छोड़ देगा. जो भी डुप्लीकेट आ रहा होगा उसको छोड़ देगा और एक यूनिक डेटा सेट कर देगा क्रिएट जिसमें कोई भी वैल्यू मतलब सारी वैल्यूज जिसमें यूनिक है एज इन डिफरेंट. सारी रोज यूनिक है. वैल्यू तो हमने देखा था. एक वैल्यू के बेसिस पे डुप्लीकेट नहीं बोल सकता ना मैं उसको. सॉरी सारी रोज. हाँ जी हाँ सारी रोज इसमें यूनिक हो गई है. करेक्ट. ओके 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 थैंक यू. ठीक है जी. तो थोड़ा थोड़ा काम होता जा रहा है. थोड़ी देर पहले एक तो नागिन ने पूछा था कि हम ये सीधे सीधे एनए काउंट कर सकते हैं क्या किसी तरीके से. ये हम ट्रिक्स क्यों कर रहे हैं इस तरह से. पहले इस डॉट एनए देखा, फिर डुप्लीकेटेड देखा, फिर सम करेंगे या कोल सम्स करेंगे. यूनिक चलो फिर भी डायरेक्ट फंक्शन है. हमें कोई खेल नहीं करना पड़ा. सीधे सीधे उसने डुप्लीकेट रोज हटा दिए. और ठीक है, डुप्लीकेट जितने भी थे वो 3000 समथिंग वो रिमूव हो गए. और नेट डेटा सेट जो हमारा बना है, ओके, इट वाज सिग्निफिकेंट. काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डुप्लीकेसी वाज देयर. So now is the time to see this is base function. अभी तक जितने भी आपने देखे हैं, these are base functions, base package which come built in R. What happened was when R was built, there was so many functions which were built in to carry out certain tasks, carry out certain analysis. But as the data analysis evolved, it was realized that we need some more functions. We need some more efficient functions, better functions, which either save me time or save me effort or save me playing around with tricks, or maybe just they are not facilities in base package. ऐसा भी है. कुछ functions ऐसे हैं जो base package में है ही नहीं, और time के साथ साथ realize हुआ that if we want to carry out proper analysis, advanced analysis, then we need these kind of functions. So those functions were written as packages. We call them packages. In Python they are called modules. So one and the same thing. And there these new functions are available, advanced functions are available, and we are just going to see one of them today. ये यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, there is a tab called packages here in this bottom right pane. ये नालायक पेन जो किसी काम नहीं आ रहा था अभी तक. You click on packages and you will see a list of packages which are available, जो आपके वो अभी बेस पैकेज से अवेलेबल हो रहे हैं. Abind, AskPass, so these are all packages जो अभी
बिल्ट इन आर के साथ ही, आर इंस्टॉलेशन के साथ ही इंस्टॉल हो गए थे। बट देन देर आर सर्टेन पैकेजेस विच आर नॉट अवेलेबल विद, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड आउट। मुझे पता नहीं है कि ये बिल्ट इन के साथ होने लगा है कि नहीं। जस्ट सी इफ देयर इज अ पैकेज दिस DPLYR, ये आपके लिस्ट में है क्या? I was talking about go to packages tab. Am I audible now? Is it clear now? Okay. So in this bottom right pane, go to packages tab, click on packages tab, scroll down, go to D list and you will see this dplyr. Is it visible there? Here dplyr कहीं पे दिख रहा है? These are in alphabetical order, so scrolling will be easy. Just check if there is DPLYR. Uh, some say yes, some say no. Okay, don't worry anybody, no problem. If it is there, then okay. If it is not there, then also it is okay. Even if it is there, I would say to install it again. What we will do is click यहाँ पर packages tab में you will be seeing two options, update and install. Click on install. Click on this install button here. It will cause a pop-up. When you click on install, this kind of pop-up will appear. Keep everything to default. Don't change anything. Repository should be CRAN. Installation library, that should be default, whatsoever it is. Just type in the package name DPLY and auto suggestion will come. So I want to install this package DPLYR, not the these assistant Teradata, just dplyr. You will click on dplyr. Down below there is a checkbox. Keep it checked. Don't uncheck it. It is to install dependencies, and yes, we need dependencies. We'll talk about what is dependency later on. And just then click on install. I'm not installing, it is already there for me, so installation takes unnecessary time. You can install. I'll stay. When you are done installing, now it will appear in this list. You will see. Very fine. So guys, dplyr is a package and there is a brief introduction in front of this package के सामने ही थोड़ा सा लिखा हुआ information. It is a package which has commands for data manipulation, and it is that powerful effect package that well, many analysts believe that 80% of the data analysis can be done by dplyr itself. So it has that much capability. And you will, second thing is syntax is way too easy than base package. We will use it heavily. Thirdly, you will see the function names. कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो SQL पे काम कर चुके हैं पहले, थोड़ा बहुत जैसा भी है. So you will find that
Actually, dplyr was built with SQL people in mind. When R was built, R के functions बहुत different हैं SQL से, अगर compare करें वैसे तो simple ही हैं लेकिन SQL से बहुत different हैं. वहाँ एवरेज कहते हैं, यहाँ मीन कहते हैं, वहाँ कुछ और कहते हैं, यहाँ कुछ और कहते हैं. तो dplyr was all together in that sense. इसके फंक्शन नेम्स बिल्कुल सेम वैसे ही हैं SQL जैसे ही. सो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी फेमिलियर. Not audible. Am I not audible? Some can hear me, some can't hear me. Okay, okay. Very fine. Anyway, we are done for today. आज थोड़ा सा और कराना चाह रहा था बट इट्स ओके, इट्स ऑलरेडी टाइम. थोड़ा सा पेन आप लोगों को लेना पड़ेगा. मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज भेजूंगा, इंडिविजुअल एक्सरसाइज दैट यू ऑल हैव टू डू बाय योरसेल्फ एंड सबमिट इट बैक. ठीक है, कल तक हो जाएगा. जस्ट 6, 7, 8 क्वेश्चंस, छोटे छोटे अभी तक जो हुआ है उसी में से. dplyr कुछ नहीं यूज करना, जितना अभी तक हुआ है उसी में से थोड़ा बहुत काम होगा. Okay, very fine guys. So I'm turning off the recording, but if there is any question, I'll stay here for a couple of minutes.